Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13, and today we will do the last exercise of surface area, and then we will start the concept of volume of 3D shapes, right? So one of the problem is from your side that 13.2 question number 10 is the problem. So let me first solve that question, and then we will come on our next exercise 13.4. Your question is, please open your books. Question number 10 of exercise 13.2. In the figure, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height 30 centimeter. एक लैंप शेड है, लैंप है जिसका आपने कवर बनाना है. And they are saying its diameter is 20 centimeter and its height is 30 centimeter. ठीक है. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. आपने जो लैंप शेड बनाना है, डेकोरेटिव क्लॉथ का बनाना है, इसका जो कवर बनाना है वो आपने डेकोरेटिव क्लॉथ का बनाना है. अब उसको बनाने के लिए, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो आपको जो क्लॉथ लेना पड़ेगा डेकोरेटिव क्लॉथ, उसको भी सिलेंड्रिकल बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसके ऊपर आपने उसे चढ़ाना है. राइट नाउ दे आर सेइंग कि अगर अब ऐसा तो नहीं हो सकता जितना ये लैंप शेड है हम उतनी की उतनी मेजरमेंट का बना दें. उसको उसके ऊपर लगाने के लिए मुझे उसको ऊपर से भी फोल्ड करना पड़ेगा और नीचे से भी फोल्ड करना पड़ेगा. राइट, तो फोल्ड करने के लिए दे आर सेइंग कि हमने दोनों तरफ से कितना कितना एक्स्ट्रा लिया है. 2.5 सेंटीमीटर हमने जो कपड़े की बात कर रहे हैं, क्लॉथ की बात कर रहे हैं, वो 2.5 ऊपर एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी 2.5 एक्स्ट्रा लिया है. ठीक है, और जो कपड़ा होगा वो आपका जो क्लॉथ होगा वो आपको लेना पड़ेगा इतना. ठीक है, length is this much but we will have to take the cloth this much, right? And now you have to then find how much cloth is required for covering the lamp shade. ठीक है, अब आपका जो लैम्प शेड है that is of the shape of a cylinder. And now what is the radius of this lamp shade? 10. Its 10. radius will be 10 centimeter. And what will be the height of the lampshade? 35 centimeter. It will be 30 plus 2.5 plus 2.5. That is equal to 35 centimeter. Now what we will have to find out? Curved surface area. We will have to find out the curved surface area because we have to cover its curved surface, not the top, not the bottom. So you just have to find out the curved surface area. You will apply the formula and get the answer. ठीक है, चलिए. Now we are coming on exercise 13.4. We have talked about cuboid in first exercise, cylinder in the second exercise, cone in the third exercise. Now we are coming on our fourth 3D shape, that is your sphere. Sphere, ठीक है, और sphere से related आप ले लेंगे एक hemisphere. ठीक है, okay. Now if its radius is r, nothing else we have to take as the dimension in case of sphere. इस केस में हम और तो कुछ नहीं ले सकते. जैसे आपका कोन होता था उसमें आप r लेते थे, ये भी आती थी, h भी आती थी आपके पास, और l slant height भी आती थी. सिलेंडर के केस में भी आपके पास रेडियस भी होती थी और हाइट भी होती थी. बट इन दिस केस वी हैव जस्ट r. क्या हम इसकी हाइट ले सकते हैं? What will be? No. अगर क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर, व्हाट विल बी योर आंसर? Its diameter. Yes, its diameter will be the height. अगर हम इसको कहीं सरफेस के ऊपर रख रहे हैं स्फीयर को, तो स्फीयर के केस में पूछा तो जा सकता है ना कि इसकी हाइट कितनी है. So its height will be r plus r, that is 2r, means diameter is the height in case of sphere. तो हमें हाइट भी निकालने के लिए सिर्फ हम रेडियस पे ही डिपेंडेंट है. So in case of sphere we have just r. In case of hemisphere also we have just r. If we have r, we can tell the height also, right? So here total surface area of sphere 4 pi r square.
It will be 4 pi r square. How many faces are there in case of sphere? In One. There is only one face और वही face आपका curved है, right? So चाहे total surface area बोले या curved surface area बोले, आपके पास single formula है, that is 4 pi r square. ठीक है? Now if we talk about this hemisphere, total surface area of hemisphere, how many faces are 3 there pi now? r square. 3 How pi r many? square. How many faces? 2. There are now two faces. एक तो आपका ये नीचे वाला कर्व और एक ऊपर वाला सरफेस, that is a circle, right? So अगर आपका पूरे स्फीयर का 4 pi r स्क्वायर था, तो आधे स्फीयर का हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, आपने उसको आधा कट कर दिया, तो कर्व सरफेस अब आपकी आधी हो गई, राइट? बट जब आप, सॉरी, this will be 2 pi r square, but if you talk about its total surface area, तो ये 2 pi r square है and this is pi r square, क्योंकि ऊपर वाला आपके पास सर्कल है. ठीक है, तो total surface area will be this area plus this area, right? So total surface area will become 3 pi r square, right? So in this exercise we are going to use these three formulae. Curved surface area or total surface area of sphere is 4 pi r square. Total surface area of hemisphere is 3 pi r square, and curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. ठीक है, let me use these formulae and do our exercise. In the first question, you are given the radius and you have to find out the surface area. और surface area अगर बोला हुआ है and कुछ भी नहीं mention है कि total या lateral किसी भी question में, तो ये तो स्फीयर का केस है, यहाँ पर तो टोटल और लेटरल या कर्व एक ही बात होगी. बट किसी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो शेप है वो किस तरह से जा रही है. अगर सिंपल सी शेप, आपको सिर्फ एक सिंगल शेप दे रखी है कि सिलेंडर, ठीक है, तो उस केस में सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो इन दिस क्वेश्चन मैं रेडियस ले रही हूँ. वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट. इफ आई टेक द रेडियस 5.6, what will be the area, surface area? 1386 centimeter square. Okay, 4 pi r square, 422 by 7. Radius is 5.6, means 56 upon 10, 56 upon 10. ठीक है, ये आपने कैंसिल कर दिया. इसके अलावा आपको कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. 10 को कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल करके फिर 5 आ जाएगा, या तो ऊपर कहीं 5 से कैंसिल होने वाली टर्म हो तब आप कैंसिल करेंगे. अदरवाइज लीव 10 एज इट इज सो दैट यू कैन पुट द डेसिमल इजीली. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स? कितना बताया आपने? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा. अच्छा, हमारा तो नहीं आया. मैम पॉइंट में आएगा. अभी पॉइंट में आप बता दो आंसर, मुझे कैलकुलेट करके आंसर बता दो. मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया ही नहीं है हर्ष. आप 392.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 392.24 अपॉन 100 आ जाएगा, because we have 2 zeros, so you will put decimal before 2 digits. So 2 digits will be there in its decimal part. ठीक है, so the answer will be 394.24. Similarly, you have second question. हाँ जी, मैं 94 आएगा. 394 आएगा. 394. Yes, 394.24. In the next question, second question में आपको diameter given है. Again, the question is same. You just have to find out the surface area. Let me take the question. D is equal to 21 centimeter. इसका एरिया जल्दी से बता दो. First of all, you will find out the radius, and then you will find out the. रेडियस निकालने की जरूरत है क्या? R2 है, R की पावर 2 है, हुआ तो वही बराबर. नहीं, बेटा, R स्क्वायर और 2R में डिफरेंस होता है. ठीक है, 2R नहीं है, R स्क्वायर है.
2r into 2r वो कह सकते हो आप, 4 स्क्वायर 4r² की जगह आप 21 into 21 पुट कर सकते हो अगर आप कह रहे हो तो। 1386 है इसका। हाँ, 21 मैम इसका तो upon- 1386 सेंटीमीटर का है, इसका तो पक्का है। अच्छा ओके, अभी आपके 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और आपने आंसर कितना फाइंड आउट किया है? 1386। ओके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। फिर से वही क्वेश्चन है, रेडियस इज 10, यू हैव टू टेल द, आप 10 से नहीं निकालेंगे, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। If you have the radius 7 centimeter, find out the total surface area of hemisphere. Answer बताओ। Waiting for the first student to tell the answer. मैम लेकिन इसके अंदर पाई भी तो 3.14 यूज करना है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। I have changed the question. वो आप उसके मैम according 462 सेंटीमीटर। मैम 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है श्रेया। ओके मैम, हम इसमें तो 22/7 ही लगानी है। इसमें 22/7 ही, आपने 3πr² यूज किया, 308 आंसर कैसे आया चेक कर लें। 322/7 into 7 into 7, 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया। 7 से हम 7 7 हो जाएगा। 21 into 22 कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू यूज पाई 3.14, सो यू विल फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंगली। Coming on question number 4, the radius of a spherical balloon increases from 7 to 14. Radius पहले 7 थी और नई radius जो है वो 14 हो गई है if you are blowing the balloon. As air is being pumped into it, find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. We have to find out the ratio of surface areas. Balloon is spherical. आपने उसके अंदर एयर पंप करी है तो वो बड़ा हो गया और उसकी रेडियस जो है वो 7 से 14 पहुंच चुकी है। इसमें जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द आंसर्स इंडिविजुअली, आप सीधा रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेशियो में आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या 4πr² ही लगेगा क्योंकि स्फीयर है और 1:4 ठीक है, 4π कैपिटल R²। 4 से 4 नहीं करना पड़ता, आपका 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ स्मॉल r इज 7 एंड कैपिटल R इज 14, ठीक है। इसको आपने कैंसिल कर लिया, यू विल गेट योर रेशियो टू बी 1:4, ठीक है। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है, आपने अलग अलग आंसर्स नहीं निकालने हैं, राइट। आप पहले ये नहीं होगा कि 4πr² इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इसकी करो, फिर उसको डिवाइड करो, नो। मैम ये एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज योर फोर्थ वन एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5. Ball is there, hemispherical, and inner diameter और outer diameter की बात हो रही है, that means उसकी कुछ ना कुछ thickness की भी बात हो रही है, ठीक है। And now they are saying inner diameter 10.5, अंदर वाला 10.5 है, and find the cost of tin plating it on the inner side, on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. आपने अंदर की साइड ही उसकी प्लेटिंग करनी है
और अंदर का ही आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे? प्लेटिंग करनी है मींस आप उसकी सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस की बात कर रहे हैं मींस वी विल हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। विच सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? Curved surface area. Curved surface area because बंद कर ball दो is there and the ball is दादी open on the top. ठीक है, ऊपर से बंद नहीं होता है। बॉल आपके पास जो भी होते हैं वो अंदर ऊपर से कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके आपने सिर्फ अंदर वाली सरफेस की ही प्लेटिंग करानी है, टिन प्लेटिंग, राइट? सो वी विल जस्ट फाइंड आउट द surface area, curved surface area of this ball. Radius will be 10.5 upon 2. ठीक है, और उसके बाद आप इसका फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड देन यू विल फाइंड आउट द कोस्ट। जल्दी से बता दो कितना एरिया आया? 173. 36.96. Surface area is 2 pi r square 3.14 or 22 by 7? 22 by 7 into 10.5 into 10.5 upon 2। ठीक है, कितना आंसर बोल रहे हो? 173.25. 693 upon 4. 693 upon 4। ओके, हम ये 2 से 2 नहीं कट जाएगा? काटोगे, बिल्कुल काटोगे। ये 2 से आपने 11 भी काटा, फिर कहाँ से अपॉन 4 आ गया? मैम 173.25 आएगा। ठीक है, ये आपने फिर इसको कट किया। ठीक है, ये डेसिमल्स की वजह से आपका जो आया था वो आया था 173.25। चलो इसको कितना आया ये नीचे 2 17 क्यों आया? बेटा? 2 10.5 के नीचे 2। 10.5 आपका डायमीटर था ना, रेडियस के लिए तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यस हाँ जी, कितना बता रहे थे? 693 upon 4. 693 अपॉन 4। जब आप डेसिमल्स हटा देंगे, नीचे 10 10 लगा देंगे, तो आप 5 से इसको फिर कैंसिल कर जाएंगे, दोनों में आपका 2 2 रह जाएगा। दैट मींस 4 विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोस्ट। कोस्ट के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 upon 100. कोस्ट जो है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, so you will multiply it with 16 upon 100। ठीक है, 4 for the 16। आंसर आंसर 27.72. 27.72. 27.72 rupees। ये आपका 27.72 rupees will be the cost of plating this ball। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। We have to find out the radius of the sphere. Surface area is given. 154 is the area. Find out the radius। रेडियस कर हम दो। फॉर्मूला लगा के उसके आगे 154 करके वो फिर कर लेंगे। Out surface area is 154. Find out the radius। यहाँ फॉर्मूला लगा दो। 4 pi r square 154। जल्दी से आंसर निकालो। और इनटू में 22/7। बिल्कुल 7/2 3.5। r square 3.5 है, r 3.5। मैम R 3.5। R. R 3.5। ओके, आप यहाँ से r square कितना आया? 49 upon 4। 49. 49 upon 7/2। मैम 49/4। अच्छा 49 upon 4 आया और इसका आपने रूट किया तो 7/2 आ गया और 7/2 is 3.5 सेंटीमीटर। दिस विल कम आउट टू बी द रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका रेशियो वाला आ रहा है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ।
मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अगर मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, व्हाट कैन आई से अबाउट द रेडियस? मैं रेडियस ऑफ मून लिख रही हूँ RM, ठीक है। मैम रेडियस 1/4 है। VM is 1/4 the diameter of Earth. This is given. DE मैंने diameter of Earth लिया है. Diameter of Moon is 1/4 the diameter of Earth. What can I say about the radius? क्या बोल रहे थे वो? 1/4 ही होगी रेडियस भी। बिल्कुल, ये भी आपकी 1/4 ही रहेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायमीटर से रेडियस में आना चाह रहे हैं तो DM अपॉन 2, दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। half of diameter will be the radius of the moon and half of diameter of earth will be the radius of the earth. Now we have to find out the ratio of what? We have to find out the ratio of their surface areas. अब देखो इसमें आपका जो स्टेटमेंट में जो पहले आता है ना वर्ड, आप उसी को ऊपर रखते हो, ठीक है। जो वर्ड स्टेटमेंट में पहले आएगा उसको आप ऊपर रखेंगे। In this question they said diameter of moon is 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इन्होंने पहले मून की बात की है, तो आप रेशियो में भी आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर रखेंगे और नीचे आप क्या लेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। रेशियो में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो वर्ड आपका पहले आएगा वो पहले उसको आप न्यूमरेटर में लेंगे, जो वर्ड बाद में आएगा दैट यू विल टेक इन द डिनोमिनेटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून इज 4 pi RM square upon 4 pi RE square, ठीक है। 4R तो 4R से कट जाएगा। हाँ जी, अब आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे, ठीक है। क्या करो? RM is 1/4 radius of earth and its square upon radius of earth square. 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 1/16 RE square upon RE square. ये आपने कैंसिल किया and now you will get 1/16 the ratio to be 1/16, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चंस सबसे इजी होते हैं, जिसमें आपका सब कुछ कैंसिल ही हो जाता है पहले। Coming to the next question. Question number 8. This is a hemispherical ball is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. Now also the students are coming. Okay, again we have a ball, hemispherical, and now you are given its thickness to be 0.25. ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक ये जो thickness है, this is 0.25 centimeter and inner radius is 5 centimeter. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास 5 centimeter, ये 5 centimeter, ये 0.25. What will be the outer radius? 5.25 5 plus thickness 0.25, that is 5.25 centimeter. And we have to find out the curved surface area of the outer surface. Outer curved surface area 2 pi R। 2 pi R बिल्कुल बिल्कुल लगा दो जल्दी से। Outer curved surface area is 2 pi R square. Answer 170.25 होगा ना? नहीं बेटा, बाहर वाला पूरी 17 radius यहाँ तक। ओके। मैम 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। 22 by 7 0.25 by 100 into 0.25 upon 100, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर लो, ठीक है।
और ये जैसे वहां कैंसिल हुआ है यहाँ पर भी हो जाएगा। एक बार आपने 7 से 21 कैंसिल कर दिया और ये कितना आ गया 11 173 173.25. 173.25 ठीक है। बीच में आपको और एक कैलकुलेशन बीच में और करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मैंने कल की क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। हाँ मैंने नहीं भेजी क्योंकि आप क्लास में थे और आप सारे क्वेश्चन कर रहे थे। फिर भी चाहिए। तो मैंने तो की, मैं साथ साथ नहीं करती, मैं पहले समझती हूँ फिर करती हूँ। वेरी गुड, अपने आप करते हो ना फिर। चलिए next question, the last question of the exercise. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. एक सिलेंडर और इतना है कि वो एक स्फीयर को बिल्कुल अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, मींस इसकी बाउंड्री को हर तरफ से टच हो रही है। ऊपर भी इस तरह से पूरा टच हुआ हुआ है। ठीक है, इधर से भी नीचे से भी और ऊपर से भी बिल्कुल बराबर है। राइट, इट्स रेडियस इज r। अगर इसकी रेडियस r है तो सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी? R. R. Yes, it will be r. And what will be the height of the cylinder? D. Diameter of sphere. ये आपकी डबल ऑफ रेडियस हो जाएगी। ठीक है, 2R. इसकी height जो है that will be 2r. Now we have to find out the surface area of sphere. Formula 4 pi r square. Here you don't have to put any value. We are not given any value. ठीक है, r itself is r, so you will leave it as it is. ये आपका first part का आंसर हो गया। Second part is you have to tell the curved surface area of cylinder. Formula for curved surface area of cylinder is Pi r square h. है 2 pi r 2 h. pi r square 2 2 pi pi r r h. h। ठीक है, this is Yeah. पर मैम अभी इन दोनों का रेशियो निकालना है। 2 pi r h कितना पुट करते हैं? 2r. Two. So at the first h we are putting 2r. यहाँ पर हम बेटा h को h नहीं छोड़ सकते। जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ हम वही अपने आंसर में ले सकते हैं। आपको h क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेडियस यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो हमारा आंसर r में तो आ सकता है बट h कैन नॉट अपीयर इन आवर आंसर, सो that is why we have converted h in terms of r. Now it will also be 4 pi r square, the same in both the cases, and then we have to find out the ratio of the areas obtained in part 1 and part 2. So ratio is part 1 का आंसर आपका 4 pi r square, here also there is 4 pi r square. So 1:1. you will get your ratio to be 1:1. ठीक है, ये आपकी थी एक्सरसाइज 13.4। मैम बाकी कल कराना। क्यों कर दे? हाँ मैम। कल तो आप एक्स्ट्रा क्लास बोल रहे थे, आज अपनी भी पूरी नहीं कर रहे। मैम कल 2 क्लासें ले ली, स्कूल में भी और अब भी। ओके